Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the most important class ninth chemistry questions. These are from both categories, either short and long. स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया था, उसको लाजमी देख लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन from the chapter number 1 is define analytical chemistry, second is differentiate between the organic and inorganic chemistry, third is define mixture, fourth is differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture, fifth is what is the relative atomic mass, sixth is how it is related to the gram. relative atomic mass का आपने relation gram के साथ लिखना है। 7 is what are chemical properties, give an example। 8 is differentiate between molecule and molecular ion। 9 is differentiate between homoatomic and heteroatomic molecule with example। define Avogadro number, define mole। डियर स्टूडेंट्स, आपके पेपर में जब क्वेश्चन आता है डेफिनेशन का तो आपने लाजमन, अगर उसके रिलेटेड एग्जाम्पल हो तो आपने लाजमी लिखनी है। अगर आप लिखेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 इज डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज़ वेरी important question for your tomorrow exam. Second is differentiate between compound and mixture. Third is define molecule, also explain its type. Fourth is how to write chemical formula, explain। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ राइट टू characteristics of cathode rays, second is what are the defects of Rutherford atomic model, third is write to characteristics of neutron, fourth is write to observations of the Rutherford model, fifth is define isotope। अब आपने isotope के साथ लाजमन इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। सिक्स इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, seventh is for what purpose U-235 is used, 8 is define carbon dating, 9 is write the electronic configuration of carbon and chlorine, 10 is define electronic configuration, 11 is how many number of electron can be accommodated in K, M and N shell। डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है 2n स्केयर। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो आपके k शेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आप n की वैल्यू 2 लिखेंगे 2n के फॉर्मूला में, तब आपकी l शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलेगा एंड अप टू सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस, राइट टू characteristics of cathode rays, third is write a note on the discovery of canal rays, fourth is explain the Bohr's atomic model, fifth is differentiate between the Rutherford and the Bohr's atomic model, sixth is what are isotopes, explain its use। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स, सेकंड इज़ व्हाट आर डुब्रीनियर ट्राइड्स, थर्ड इज़ राइट डाउन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये इस तरह से भी आ सकता है कि हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड आल्सो राइट इट्स स्टेटमेंट। तो आपने एच मोजले के बारे में लिखना है कि उन्होंने
ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था और उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है। फोर्थ इज डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। फिफ्थ इज डिफाइन Mendeleev's periodic law. Six is why noble gases are not reactive. This is very important short. Next is define shielding effect. Eight is why second ionization energy is higher than the first one. Nine is differentiate between the octet and the duplet rule. Dear students, यूजुअली आपके जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिया जाता बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ डिफाइन केमिकल बॉन्ड। हाउ डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सेकंड इज़ why does ice floats on water. Next is what is meant by intermolecular forces. Third is metals are good conductor of electricity. Why? Fourth is why a covalent bond become polar. Fifth is differentiate between the polar and non-polar covalent bond. Sixth is why is the BF3 electron deficit. Six is write two characteristics of covalent compounds. डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 4 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड इज define ionic bond, explain the example of NaCl. Third is define covalent bond and explain its types. Fourth is what are ionic and covalent compound. इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है और उसी की प्रॉपर्टीज और यूजेस मीन्स ये दोनों तरह आ सकता है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, या आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा या कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। सेकंड इज डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड इज स्टेट बॉयल्स लॉ। फोर्थ इज स्टेट चार्ल्स लॉ। आपने जब भी इनकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैथमेटिकल फॉर्म आपने मस्ट लिखनी है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। Fifth is define evaporation. Six is why does evaporation cause cooling. Seven is define transition temperature. Eight is what is allotropy. Nine is differentiate between the evaporation and condensation. 10 is differentiate between the boiling and melting point. 11 is define amorphous सॉलिड्स, या इस तरह से भी आ सकता है डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो आपने इनकी डेफिनेशन के साथ इनकी एग्जांपल लाजमी लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज स्टेट बॉयल्स लॉ, आल्सो राइट इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब आपने इसमें इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखनी है, लाइक इट्स डेफिनेशन, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द डायग्राम, इन दोनों लॉज की। सेकेंड इज स्टेट चार्ल्स लॉ, आल्सो राइट इट्स experimental verification. Third is define diffusion, describe the phenomena of diffusion in liquid with factors. आपने डिफ्यूजन के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, फैक्टर्स को भी राइट करना है। फोर्थ इज डिफाइन वेपर प्रेशर एंड आल्सो एक्सप्लेन, आपने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, इसके फैक्टर्स जो हैं वो भी लिखने हैं। फिफ्थ इज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, इसमें आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ अलॉय, गिव एग्जांपल। सेकंड इज़ डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन।
इसमें आपने इसकी 7 एग्जाम्पल लिखनी है। थर्ड इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फोर्थ इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। फिफ्थ इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। अब परसेंटेज किसी भी तरह आ सकती है जो आपकी बुक्स पे मेंशन है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड मास बाय मास परसेंटेज। आपने इन चारों की डेफिनेशंस अलोंग विद द फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लेना। Six is what is the dilution of solution. Seventh is differentiate between the concentrated and dilute solution. Eighth is define molar solution. How is the molar solution of NaOH is prepared. Nine is what do you mean by the like dissolve like. 10 is differentiate between the concentrated and unsaturated and unsaturated solutions. स्टूडेंट्स अब हम इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट इज स्टेट एट लीस्ट 5 प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। इसमें आपने इस चैप्टर के लास्ट पे जो टेबल मेंशन है उसमें से आपने 5 करेक्टरिस्टिक्स कर लेनी है। सेकंड इज़ व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। इसमें आपने सॉलिबिलिटी वाला कंप्लीट टॉपिक राइट करना है। थर्ड इज़ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। फोर इज़ what is molarity, how to prepare the molar solution. Fifth is define percentage. Also write down 4 ways to express the percentage composition of solution। तो आपने percentage की जो 4 टाइप्स हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस एंड मैस बाय मैस, इन सब की हेडिंग में आपने लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है और इनके फॉर्मूलाज को राइट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड इज डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ gain or loss of electron, give an example. Third is differentiate between the valency and oxidation state. Four is what is the function of salt bridge. Fifth is what is galvanizing, how it is done. Six is define electroplating. Seven is define redox reaction। अब आपने इस रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जाम्पल भी लाजमी लिखनी है। एट इज़ differentiate between the strong and the weak electrolytes. 9 is differentiate between the electrolytic and galvanic cell. 10 is what is the anode cathode. अब हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 इज़, जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द नेल्सन सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH from brine. Second is define electrolysis. Discuss electrolysis of water in detail. Third is define oxidation number. Explain its rules. ये भी बहुत important है और इस क्वेश्चन के आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। Fourth is differentiate between the electrolytic and galvanic cell. Fifth is describe the process of electrolytic refining in detail. इसमें आप कॉपर की कर लें। सिक्स इज डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर क्रोमियम इज़ कैरिड आउट। पेपर में या सिल्वर के बारे में पूछा जा सकता है या क्रोमियम, तो आपने इनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो भी लाजमन लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट इज़ राइट टू फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है या केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन मेटल्स के लिए भी है और नॉन मेटल्स के लिए भी। सेकंड इज़ राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। इसमें आपने इन तीनों मेटल्स के यूजेस लिख लेने हैं। थर्ड इज़ गिव टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड। फोर्थ इज़ वाई द रिएक्टिविटी of metal increases down the group. Fifth is what do you mean by 22, 24
carat gold. 6 is differentiate between the metals and non-metals. 7 is define halogens. अब पेपर में 4 halogens के नेम भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को halogens कहा जाता है, और इसमें ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह शामिल हैं. 8 is why silver and gold are least reactive. 9 is what do you mean by the malleable and ductile. 10 is write the uses of platinum. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. एंड द फर्स्ट इज डिफाइन मेटल्स. Non-metals make a comparison of physical chemical properties. इसमें मेटल या नॉन मेटल, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक पूछी जा सकती है, या फिजिकल या केमिकल. सेकेंड इज़ हाउ इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स टू अस एक्सप्लेन. इसमें आपने जो बुक के लास्ट के ऊपर टॉपिक है, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स टॉपिक है, और ऊपर आपके जो हैं वो अंदर ज़्यादा सारे पॉइंट्स मेंशन है, तो आपने उनकी हेडिंग बना के और 5 कोई से 5 को एक्सप्लेन करना है. सेकंड इज़ हाउ इम्पोर्टेंट थर्ड इज़ कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसमें आपने इसका डिफरेंस टेबल लास्ट चैप्टर का वो कर लेना है. फोर्थ इज़ राइट द रिएक्शंस ऑफ सोडियम विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो इतनी लेट अपलोड इसलिए की गई बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने पेपर की अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा और बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.